بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں سابق ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شارق جمال خان کی پراسرار موت نیا رخ اختیار کر گئی ہے۔ اہل خانہ نے شارق جمال خان کی موت کو قتل قرار دے دیا ہے۔ نشتر کالونی پولیس نے شارق جمال خان کی بیٹی ہانیہ شارق کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمہ قتل کی دفعات کے تحت خاتون سمیت 7 نامزد ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ سابق ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شارق جمال خان کی پراسرار موت نیا رخ اختیار کر گئی ہے۔ اہل خانہ نے شارق جمال خان کی موت کو قتل قرار دے دیا ہے۔ نشتر کالونی پولیس نے شارق جمال خان کی بیٹی ہانیہ شارق کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ مقدمہ قتل کی دفعات کے تحت خاتون سمیت 7 نامزد ملزمان کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں شاہزیب سے۔ شاہزیب بتائیے۔ جی بالکل، سابق ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شارق جمال خان کی پراسرار موت نیا رخ اختیار کر گئی ہے۔ اہل خانہ نے شارق جمال خان کی موت کو قتل قرار دے دیا ہے۔ نشتر کالونی پولیس نے شارق جمال خان کی بیٹی ہانیہ شارق کی درخواست پر ایک نیا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمہ قتل کی دفعات کے تحت خاتون سمیت 7 نامزد ملزمان کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ نامزد ملزمان میں قرۃ العین، منصور الہی، سمیع اللہ نیازی، شعیب، عمران، جاوید بٹ، عدیل اور شبیر شامل ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق ڈی آئی جی شارق جمال کو منصوبہ بندی کے تحت زہر دے کر قتل کیا گیا ہے، جبکہ مقبول شارق جمال خان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی موصول ہو رہی تھی۔ ملزمان کے خلاف موبائل میسیجز بطور ثبوت بھی موجود ہیں۔ 21 جولائی کو قتل سے پہلے مقتول نے گھر والوں سے مختلف معاملات پر بات چیت کی۔ مقتول نے بتایا کہ چوری نے 8 کروڑ مالیت کے امریکی ڈالر، 5 لاکھ نقدی، قیمتی دستاویزات موجود ہیں۔ مقتول شارق جمال خان نے اور فیول بزنس میں سرمایہ کاری بھی کر رکھی، جبکہ رات 12:30 بجے کے قریب شارق جمال خان کی پراسرار موت کی اطلاع ملی۔ قتل کے بعد تجوری کھلی ملی، ملکی و غیر ملکی کرنسی، اہم دستاویزات غائب پائے گئے، جبکہ ملزمہ قرۃ العین نے دیگر ساتھیوں کی مدد سے واردات کی۔ ملزمان نے قتل کی واردات کو حادثے کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی۔ یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ نئے مقدمے میں بطور متن تیار کی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، شاہزیب شہزاد اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ خبر ہے کہ ڈینگی مچھر کے وار نہ تھم سکے۔ لاہور میں ڈینگی کے 77 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ پنجاب بھر میں 151 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈینگی وائرس کا پھیلاؤ مزید بڑھنے لگا۔ لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران 77 نئے مریض رپورٹ۔ پنجاب بھر میں ڈینگی کے مزید 151 مریض سامنے آئے۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 3806 کنفرم مریض رپورٹ ہو چکے۔ صوبہ بھر میں ڈینگی کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 9049 تک پہنچ چکی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 84 مریض زیر علاج ہیں۔ ضلع لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 30 مریض داخل ہیں۔ سیکریٹری ہیلتھ پنجاب علی جان خان نے کہا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں اور ڈینگی کی روک تھام کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں۔ محمد بلال، لاہور نیوز۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہسپتالوں کی بہتری کے لیے متحرک ہو گئے۔ محسن نقوی کا جنرل اور میو ہسپتال کا 3 گھنٹے طویل دورہ، ہسپتالوں میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، ضروری ہدایات بھی دیں۔ وزیر اعلیٰ کا شہری کی شکایت پر ٹیسٹ باہر سے کرانے پر اظہار برہمی، ٹیسٹ کے پیسے شہری کو واپس کرانے کا حکم دے دیا۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا جنرل اور میو ہسپتال کا 3 گھنٹے طویل دورہ، دونوں ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن اور تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے جنرل ہسپتال کے اولڈ بلاک اور نیو بلاک میں آپریشن تھیٹرز کی تعمیر و بحالی کا بھی معائنہ کیا۔ شہری کی شکایت پر ٹیسٹ باہر سے کرانے پر اظہار برہمی، ٹیسٹ کے پیسے شہری کو واپس کرانے کا حکم۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ تمام آلات اور اشیاء کی انوینٹری تیار کی جائے، تعمیراتی کام کے دوران بیڈز اور دیگر اشیاء کو محفوظ جگہ پر سٹور کیا جائے۔ بعد ازاں محسن نقوی نے میو ہسپتال کے ایمرجنسی بلاک کی اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا، آپریشن تھیٹرز، کنسلٹنٹ روم اور استقبالیہ ایریا کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ چاروں فلورز پر گئے اور جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے مزدوروں سے مصافحہ بھی کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے 3 شفٹ میں کام کرنے کی ہدایت کی۔ صوبائی وزراء ڈاکٹر جاوید اکرم، عامر میر، سیکریٹری صحت، سیکریٹری اطلاعات، وائس چانسلرز، ایم ایس اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ موسم نے کروٹ بدلی تو شہر میں فضائی آلودگی نے ڈیرے ڈال لیے۔ لاہور فضائی آلودگی کی فہرست میں پہلے نمبر پر براعظمان ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 374 تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سامیہ سعید اس حوالے سے رپورٹ کریں گی۔
फिजाई आलूदगी रोक बन गई। बाघों के शहर में फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 से तजावुज कर गया। सबसे ज्यादा AQI मॉल रोड पर 447 रिकॉर्ड किया गया। कैंट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 रहा। आमे टाउन के इलाके में AQI 387 रिकॉर्ड। स्मोक के बायस नाक, कान, गला, आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी जैसे मसाइल जन्म लेने लगे। तिब्बी माहिरीन ने बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के हवाले से हिदायत जारी कर दी। शहरियों को मास्क और ऐनक के इस्तेमाल का मशवरा। दूसरी जानिब दर्जा हरारत में कमी आने लगी। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 जबकि कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। कैमरामैन हाफिज मुबीन के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं कि पंजाब में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए अदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौल इन एक्शन है। गुज़श्ता 3 माह में 1124 भट्टों को सील कर दिया गया है। आलूदगी फैलाने वाले भट्टा मालिकान को 9 करोड़ 18 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। स्मोक पर काबू पाने के लिए इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की कार्रवाइयाँ तेज। गुज़िश्ता 3 माह में लाहौर में 233 जबकि दीगर इजला में 12,056 भट्टों की चेकिंग। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टा मालिकान को 2,213 नोटिस जारी। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने 1,124 भट्टों को सील कर दिया। शेखुपुरा में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी न लगाने पर भट्टा मस्मार कर दिया गया। फिजाई आलूदगी के खिलाफ इकदाम में लापरवाही पर कार्रवाई। मुल्तान में भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न कराने पर DO मुल्तान मुअत्तल, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर भट्टा मालिकान पर 9 करोड़ 18 लाख रुपए जुर्माना किया गया। DG माहौलियात पंजाब ज़हीर अब्बास मलिक का कहना है कि आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबे में ईंटों के भट्टों के खिलाफ मजीद सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। वासा लाहौर ने स्मोक पर काबू पाने के लिए मिस्ट क्वीन मशीनें तैयार कर ली हैं। मिस्ट क्वीन मशीनों की मदद से शहर की मरकजी शाहराहों को साफ किया जाएगा। MD वासा गुफरान अहमद ने मिस्ट क्वीन मशीनों का मुआयना किया। वासा लाहौर ने स्मोक पर काबू पाने के लिए मिस्ट क्वीन मशीनें तैयार कर ली हैं। मिस्ट क्वीन मशीन की मदद से शहर की मरकजी शाहराहों को साफ किया जाएगा। MD वासा ने तमाम टाउन्स अफसरान को सड़कों पर छिड़काव कराने के अहकाम दे दिए। गुफरान अहमद का कहना था कि मिस्ट क्वीन मशीनें मॉल रोड, मेन बुलीवार्ड, केनाल रोड समेत दीगर मरकजी शाहराहों पर रोजाना काम करेंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत रवां सीजन चीनी और आटे के नर्ख मुकर्रर करने में नाकाम रही। मार्केट की सूरत हाल की बुनियाद पर आटे और चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। चीनी 150 रुपए फी किलो तक आ गई है, जबकि आटे की कीमत में तेजी भी थम गई है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। चीनी और आटे के सरकारी निर्ख जारी न हो सके। मार्केट की सूरत हाल की बुनियाद पर ही कीमतें मुकर्रर हो रही हैं। मार्केट में चीनी 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। 2 माह कबल चीनी 190 रुपए फी किलो तक बेची गई। आटे की कीमत में भी तेजी रुक गई। मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स का 20 किलो आटे का थैला 2700 से 2800 रुपए तक दस्तयाब है। खुला सुर्ख आटा 140 और फाइन आटा 150 रुपए फी किलो मिल रहा है। चक्की आटा बदस्तूर 175 रुपए फी किलो में है। मार्केट जराये के मुताबिक आइंदा हफ्ते आटे के थैले के निर्ख में कमी का इम्कान है। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए तक सस्ता हो सकता है, जबकि नई क्रशिंग से चीनी की कीमत में भी इस्तेहकाम रहेगा। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। नवंबर में गंदम के इजरा पर कीमतें क्या हो सकती हैं? लाहौर न्यूज़ सिफारिशात सामने ले आया। कौन से सूबे में गंदम रिलीज़ की कीमत क्या होगी और 10 किलो आटे का थैला कितनी कीमत पर फरोख्त होगा? तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा खुराक ने नवंबर के आगाज पर गंदम इजरा शुरू करने की ऑप्शन रख दी। पंजाब में गंदम की फीमन इजराई कीमत 4,300 रुपए से 4,600 रुपए रखने की सिफारिश कर दी गई। सिंध हुकूमत की गंदम की फीमन रिलीज प्राइस 4,400 रुपए से 4,600 रुपए और KP हुकूमत की फीमन इजराई कीमत 4,650 रुपए से 4,700 रुपए रखने की सिफारिश की गई है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम की फीमन इजराई कीमत की समरी वज़ीर आला पंजाब को भेज दी। वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की गई गंदम की इजराई कीमत की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। समरी दस्तावेज के मुताबिक गंदम की फीमन इजराई कीमत फिक्स करने का फैसला कबीना कमेटी के इजलास में होगा। इजलास में सरकारी गंदम की वीट रिलीज पॉलिसी 2023-24 की समरी का फैसला होगा। 4,300 रुपए फीमन की सूरत में 10 किलो आटे का थैला 1,256 रुपए में मिलेगा। जराये के मुताबिक ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1,350 रुपए में फरोख्त होगा। गंदम की कीमत
कीमत 4,350 रुपए मुकर्रर हुई तो 10 किलो का थैला 1,274 रुपए में मिलेगा। पिछले साल सरकारी गंदम 2,200 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदी गई थी। नई गंदम की खरीदारी इस मर्तबा 3,900 रुपए फी मन रखी गई है। नई गंदम की कीमत फरोख्त 43 रुपए होने से 400 रुपए इजाफा होगा। सरकारी गंदम की फी मन कीमत में मजमूई तौर पर 2100 रुपए का इजाफा किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महंगाई के शिकंजे में कोई नरमी न आई। अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए जमा तफरीक में ही मसरूफ़ है। ब्रायलर गोश्त एक ही रोज़ में 33 रुपए फ़ी किलो महंगा कर दिया गया है। अंडों के नर्ख में भी कमी नहीं हो रही और सब्जियां भी पहुंच से बाहर होती चली जा रही हैं। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। महंगाई का जोर न टूट सका, सस्ता होता ब्रायलर फिर महंगा होने लगा। एक ही रोज में ब्रायलर गोश्त की कीमत में बड़ा इजाफा। मुर्गी का गोश्त 33 रुपए इजाफे से 453 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडे 325 रुपए फी दर्जन है। सब्जी मार्केट में भी महंगाई के डेरे हैं। टमाटर 10 रुपए महंगे, सरकारी कीमत 125 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में टमाटर 150 रुपए फी किलो तक पहुँच गए। प्याज 95 रुपए के बजाय 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा। आलू 120, लहसुन 600, अदरक 800 रुपए फी किलो है। बंद गोभी 120 और फूल गोभी 70 रुपए फी किलो मिल रही। किसी का कुछ है, किसी का कुछ रेट है, एक है किसी का रेट ही नहीं है। अब मुर्गी लेने आए हैं काफ़ी दूर से, हम तो पूछ के आए हैं तो कोई 450 बता रहा है, कोई 80 रुपये बता रहा है। रात को कुछ सोच के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो समझ से बाहर होता है कि हमारे मुल्क में ये क्या चीज़ चल रही है। क्या अब आप हुकूमत ही हमें ये बताए कि हम क्या करें, किधर जाएं। अवाम कहते हैं अशाए ज़रूरिया की कीमतों का ही नहीं पता चलता। हुकूमत रेट्स पर काबू पाए। तरक्की का सफ़र जहां रुका था, नवाज शरीफ ने वहीं से शुरू करने का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून के इन वादों ने अवाम के लिए नई उम्मीद के साथ कई सवाल भी पैदा कर दिए हैं। क्या साबिक वज़ीर आज़म पेट्रोल और डीजल की कीमतों को 2017 की सतह पर ला सकेंगे? रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ का तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू करने का ऐलान। अवाम के लिए नई उम्मीद तो है मगर मुस्लिम लीग नून के लिए कड़ा इम्तिहान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मुख्तलिफ अदवार में जायजा लें तो PTI के पौने 4 साला दौर में पेट्रोल 77 रुपए महंगा होकर 149 रुपए 86 पैसे फी लीटर तक गया। अदादोशुमार के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने दौर में डीजल की कीमत 63 रुपए 10 पैसे फी लीटर बढ़ाई और अप्रैल 2022 में डीजल 144 रुपए 10 पैसे फी लीटर था। PDM की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने और महंगाई कम करने का दावा किया मगर 16 माह के दौरान कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे किए। पेट्रोल 123 रुपए 45 पैसे महंगा करके फी लीटर 272 रुपए 95 पैसे कर डाला। डीजल की कीमत में 129 रुपए 30 पैसे इजाफा करके 273 रुपए 40 पैसे फी लीटर तक पहुंचा दिया। निगरान हुकूमत भी किसी से पीछे न रही। पेट्रोल 10 रुपए 43 पैसे महंगा करके 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर किया गया। निगरानों की निगरानी में ही डीजल 29 रुपए 78 पैसे महंगा हुआ और 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर तक पहुंच गया। नून लीग को हुकूमत मिली तो इसे तरक्की का सफर 2017 से शुरू करने में बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। 2017 में पेट्रोल 72 रुपए 80 पैसे, डीजल 81 रुपए 40 पैसे फी लीटर था। अवाम कहते हैं ये मुमकिन नहीं क्योंकि जो शय महंगी हो गई सो हो गई। पेट्रोल तो उसकी कीमत पे कभी भी नहीं आएगा। आप ये सोच ही नहीं सकते कि पेट्रोल वापस आए या वो चीज़ें जो गुजर गई हैं वो पाकिस्तान में अभी तक वापस उस मुकाम पे नहीं आई। सर ये हो नहीं सकता, पेट्रोल सोचने से आ ही नहीं सकता क्योंकि ये एक बार ऊपर चला गया है। माहिर मुआशियात व सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ अनवर का कहना है कि नवाज शरीफ का ऐलान खुशाइंद है, ताहम जब तक रुपए की कदर मुस्तहकम नहीं होगी मामलात बेहतर नहीं होंगे। अगर नून लीग फिर बरसरे इक़्तिदार आई तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को 2017 की सतह पर लाने के लिए इसे पेट्रोल 210 रुपए 58 पैसे और डीजल 222 रुपए 40 पैसे फी लीटर कम करना होगा। नवाज शरीफ ने जब हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त पेट्रोल 72 रुपए 80 पैसे और डीजल 81 रुपए 40 पैसे फी लीटर था। आज पेट्रोल की कीमत 283 रुपए 38 पैसे और डीजल 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर है। देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून को जब हुकूमत मिलेगी तो अपने वादे की पासदारी करती है या उसमें नाकाम रहती है। कैमरामैन फैसल खान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। शहरियों को बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिल भेजने का सिलसिला जारी है। बिल बर वक्त मिल रहे हैं, ना ही घरों में पहुंचाए जा रहे हैं। लेस्को के ऑनलाइन बिल डालकर अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया गया है। सार्फिन की अक्सरियत जुर्मानों के साथ बिल देने पर मजबूर है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
लेस्को की जानिब से शहरियों को होश उड़ा देने वाले बिल बेचे जाने लगे। लोगों की कसीर तादाद लेस्को के बिल्स की हार्ड कॉपी न मिलने पर दर बदर होने लगी। लेस्को ने ऑनलाइन बिल डालकर अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया। रिकवरी मुहिम और बिजली चोरी की मुहिमात ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी। सारिफिन को बिल बर वक्त मिल रहे न ही घरों को पहुँचाए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक सारिफिन की अक्सरियत जुर्मानों के साथ बिल देने पर मजबूर है। कई सारिफिन को इस माह के बिल मौसूल ही नहीं हुए। शहर में सबसे खराब सूरत हाल रायवन रोड और अड्डा प्लाट के नवा की है। रायवन रोड के मुख्तलिफ इलाकों हाउसिंग सोसाइटीज के मकीन लेस्को बिल्स को तरस गए। फजाइया हाउसिंग सोसाइटी फेज 1 में कई माह से बिल्स की हार्ड कॉपी नहीं मिल रही। अक्सर सब डिवीजन्स में बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद ही नहीं या बहुत कम है। जिन सब डिवीजन्स में 1 या 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सारिफिन तक बिल नहीं पहुंचा रहे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर और जनरल सेक्रेटरी पंजाब शाफे हुसैन ने कहा है कि अक़वाम आलम को गजा पर हमलों का नोटिस लेना चाहिए। फ़लस्तीनियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि मुस्लिम उम्मा सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइल के गजा पर हमलों को रोकने के लिए इक़दाम करे। इसराइल अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं करता तो उस पर फौरी पाबंदियाँ लगाई जाएँ। रिपोर्ट मोहम्मद यासीन की। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुजाहरे में लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हाथों में बैनर्स, प्ले कार्ड्स और फ़लस्तीन के झंडे उठाए इसराइली जहारियत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौका पर चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि कश्मीर में भारत और फ़लस्तीन में इसराइल निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करें। चौधरी सरवर का कहना था पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे होने के बावजूद वो खून की होली खेलना बंद नहीं कर रहा। अगर इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की बात नहीं मानता तो इस पर पाबंदियां लगाई जाएं। चौधरी सरवर ने मुतालबा किया कि फ़लस्तीनियों को उनकी आज़ाद मुमलिकत मुहैया करने के लिए तमाम मुस्लिम उम्मा को यकजा होना होगा। सिर्फ जुबानी दावों से काम नहीं बनेगा। कैमरामैन बिलाल के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर सन्नत व तिजारत एसएम तनवीर कहते हैं कि कॉटन इंडस्ट्री पर वज़ीर आला ने बहुत मेहनत की है। चीन के साथ मिलकर कॉटन इंडस्ट्री को बेहतर बनाएंगे। सामिया सईद इस हवाले से रिपोर्ट करेंगी। निजी इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फॉर्म के असरात पर निजी होटल में सेमिनार निगरान सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत एसएम तनवीर और चीनी कौंसल जनरल की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। नज़ीर हुसैन, डॉक्टर शबीर, डॉक्टर अमजद मक्सी, डॉक्टर एहतशाम और दीगर सेमिनार में शरीक हुए। इस मौके पर निगरान सूबाई वज़ीर एसएम तनवीर का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान 20 मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती कामों के हवाले से MOU पर दस्तखत किए गए हैं। चाइना के साथ मिलकर कॉटन की इंडस्ट्री को बेहतर बनाएंगे। पाकिस्तान विजिटेड चाइना। चीनी कौंसल जनरल का कहना था कि तीसरे बेल्ट एंड रोड फॉर्म ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान आला मयार के ताउन को एक नई तहरीक दे दी है। What kind of impact this BRF will have on Pakistan, and what we should anticipate the impact on China-Pakistan relations, on the future development of CPEC, China-Pakistan Economic Corridor. I believe this might be more essentially relevant to today's seminar. I have personally very full confidence because the successful conclusion of this BRF will enable our bilateral relations further develop. A better, a brighter future of our bilateral relations, our traditional friendship is awaiting us. चीन के साथ तजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से मुनाकिदा सेमिनार को शुरका ने खूब सराहा। कैमरामैन फैसल के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं कि वासा का शहर में 7 लाख वाटर मीटर्स की तनसीब का मंसूबा घटाई में पड़ गया। निजी कंपनी ने डॉलर महंगा होने पर वाटर मीटर्स के लिए पुर्जे खरीदने से इनकार कर दिया है। स्टेट बैंक ने भी निजी कंपनी को LC खोलने की इजाज़त ना दी। लाहौर में 7 लाख से ज़ायद कनेक्शंस पर वाटर मीटर्स नस्ब किए जाने थे। वासा और निजी कंपनी के दरमियान मुआहदे के वक्त डॉलर 160 रुपये का था। कंपनी को मीटर के पुर्जे मंगवाने के लिए अब 280 रुपये फ़ी डॉलर अदा करना होंगे। लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म